ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਣਾ 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 ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣਾ। ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ, ਮੰਗਤੇ, ਗਦਾਗਰ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਲੁਟੇਰਾ ਤਬਕਾ, ਚੋਰ ਤਬਕਾ, ਡਕੈਤ ਤਬਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਤਬਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਤਬਕਾ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਵ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਣ ਮੋਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੰਗਤ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਨਾ ਮੰਗ, ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਦਿਮਾਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਰਮਣ ਦੇ 'ਚ ਲੰਘਾਈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਲੰਘਾਈ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਹਲ ਪਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਪਏ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਕਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਬੁਣਦੇ। ਜਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਖੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖੱਡੀ ਦੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨਾ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਛੋੜਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਛੋੜਾਂ? ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵਦਾ, ਲੋਭ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਦਾ, ਲੋਭ ਦੇ। ਤੇ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਫਲ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ, ਲੋਭ ਧਾਵੇ ਦੇ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨ ਜਾਣੇ, ਭਖ ਅਵਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਲੋਭ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਮਾਮ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਭ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਦੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। ਜੈਸੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਹੈ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ तो 4 ਖਾ ਲਿਆਂਗਾ, ਚਲੋ 4 ਨਹੀਂ ਤੇ 8 ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ,
स्वाद की सीमा नहीं है, भुख की सीमा है, लोड़ां की सीमा है, लोभ की सीमा नहीं है। लोड़ां मनुख नूं नहीं गिरांदियां, लोभ गिरा देंदा है। लोड़ां मनुख नूं नहीं भटकांदियां, लोभ भटका देंदा है। लोभ पागल कुत्ता बना के रख देंदा है। इस लोभ की पूर्ति भी मनुख 3 तरीकों नाल करदा है, मेहनत करके, मंग के या लुट के, खो के, लेकिन लोभ की पूर्ति होंदी नहीं। किरत नाल नहीं होगी, किरत नाल लोड़ां की पूर्ति होगी, मंग के भी नहीं होगी, खो के भी नहीं होगी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜੀ नहीं सकता, तृप्त नहीं हो सकता। जिस नुकते ਨੂੰ गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इत्थे लिया है वो ये है, तू मनुख है, बाकी भी मनुख ने, कि मनुख हो के मनुख कोल मंगदा, ये तो बहुत हीणी गल, बहुत हीणी। मनुख है, मनुख कोल मंगदा, सारी मनुखता कृत है, करते कोल मंग, जे मंगना ही है करते कोल मंग, कृत कोल क्यों मंग? तू भी करते दी कृत है, बाकी भी करते दी कृत है। उस करते ने वख वख भांडे बनाए ने, बनाए उस एको ही करते ने। किसी ने किसी नूं कुछ बनाया, किसी नूं कुछ बनाया, किसी नूं कुछ बनाया, सारे कृत ने। तू भी कृत है, बाकी भी कृत ने, कि कृत कृत तो मंगे। कृत कविता जो है, कवि की कृत है कविता, कई छंद ने, कि एक छंद अपने महान बनाना चाहे, सुधाई कराना चाहे, कि दूजे छंद नूं बेनती करे, दूजी काव्य शैली नूं बेनती करे भी ए छंद जरा तू मैनू ठीक कर दे। छंद छंद नूं किस तरह ठीक कर सकता है? उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए। शेर शेर नूं किस तरह ठीक कर सकता है? उर्दू शेर कहते हैं। सवैया सवैये नूं किस तरह ठीक कर सकता है? कवि ठीक कर सकता है, कवि करता है, वो ठीक कर सकता है। कृत कृत कोल मंगे, कि कृत कृत कोल सफल होना चाहे तो महान होना चाहे, कृत किसी नूं महान नहीं बना सकती, करता ही महान बना। इस शब्द के कुछ इस तरह के ख्याल आए ने जो मैं भूमिका के रूप में थोड़े सामने रखे ने। हुण अखरी अर्थ सरवण करो, एक दफ़ा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। राग सौरठ है तो एक ताल दे है, थोड़ा जिहा मैनूं संगीत का बोध है। यक्का एक ताल, 3 ताल, चौताला, ये मात्रा आउंदियां ने, ताल आउंदे ने। किस ताल दे च गायन करना? गज़ब की गल इतनी सख्ती सतगुरु ने उपर रखी है, ये राग तो फिर इस ताल दे च गाना। ये नहीं कोई एको ही दफ़ा लिख दिता है सोरठ। हुण सोरठ राग के जितने शब्द आएंगे सब ते सोरठ लिखी जाए, बार बार लिखी जाए, बार बार लिखी जाते हैं। मतां किसी होर राग च गाओ, इस गाओ, बार बार लिखी जाए, बार बार लिखी। धनासरी के शब्द आएंगे, बार बार धनासरी च लिखे, धनासरी मल्ला पंजवां, धनासरी मल्ला पंजवां। महाराज एक दफ़ा उपर लिख दिता, ठीक है धनासरी, गल खत्म। बार बार क्यों लिखे जाते? इस वास्ते किधर एको ही शब्द धनासरी च गाउन तो बाकी ना गाए, ये सारे धनासरी च गाने, ये सारे ही सोरठ के गाने। कौन गांदा है सोरठ तो कौन गांदा है धनासरी? 2 सुरां का राग रह गया, स्रोत बड़ी नीवी हो गई है, उच्चारण ते गायन बड़ा नीवा हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। कौन गुरबाणी की विचार सुनता है? मैं अर्ज करा, होके किस्से कहानियां जो ना इतिहास ने, ना मितिहास ने, ना सच ने। क्यों? स्रोत ने भी हो गई। अर्थशास्त्र का यह नियम है, जिहड़ी चीज़ मनुखों की लोड़ आउंदी है मार्केट च, वही आ जाती है।
हो जाए। तो जिस चीज़ की खरीदारी बहुत ज़्यादा हो बस वो मार्केट बहुत आ जाती है। हुण जावे बंदा जौहरी बाजार दे ते आखे मूलियां चाहिए ने, गाजरां चाहिए ने, तो जौहरी बाजार दे भी मूलियां गाजरां वाले बैठ जाएंगे। मैं देखिया जौहरी बाजार जयपुर का, हीरे मोतियां की दुकाना के अगों गाजर मूलियां बेचण वाले बैठे, उत्थे मैनू ख्याल मिलेगा कि हद हो गई। बाजार जौहरी बाजार बड़ा सुंदर बाजार, अदकी साड़ी रिहाइश भी उत्थे सी। हर साल 3 दिन का बहुत बड़ा समागम होंदा, उत्थों करके आया जयपुर आगरे तो। जौहरी बाजार सिंह साहब भी गए सन उत्थे, यानी हरचरण सिंह जी। जौहरी बाजार विच मूलियां पईयां विकन, गाजरां पै, बैंगन पै विकन। मैं कहा हद हो गई, ये तो जौहरी बाजार है। सारियां दुकानां हीरे जवाहरात दियां, अगे फुटपाथ पर मूलियां पईयां विकदियां ने। हीरे जवाहरात की दुकान है तो कोई एक बंदा, किसी च एक भी नहीं सी। पर भीड़ सी गाजर मूलियां, उत्थे ही भीड़ सी। पालक ते साग ते भीड़ सी, बैंगणा ते भीड़ सी। स्रोत नीवी हो जाए वक्तव नीवा हो जाता है, स्रोत नीवी हो जाए गायन नीवा हो जाता है। इस समय सिख समाज की स्रोत गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना बहुत नीवी हो गई। 2 सुरां का राग रह गया, गुरमत संगीत खो गए। बड़ी सख्ती दे नाल हर शब्द उत्ते सोरठ मल्ला पंजवा, सोरठ मल्ला पंजवा, सोरठ मल्ला पंजवा। मता एक शब्द सोरठ च गाओ, बाकी ना गाओ, सारे गाने सबनों सोरठ दे गाने। श्री राग मल्ला पहला, श्री राग मल्ला पहला, श्री राग मल्ला पहला। मता किधर एक शब्द नूं तुसीं श्री राग च गाओ, सारियां नूं गाना बार बार लिखे। फिर सिर्फ इतना ही नहीं लिखिया, राग ताल भी लिख दिता है। ये 3 ताल च गाना है, एक ताल दे च गाना है, इतने मात्रा का राग है, ये भी लिख दिता है। कौन परवाह करता है, कौन ध्यान दे, कौन इस पासे जाए। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, राग सोरठ है, एक ताल दे सतगुरां ने इसकी बंदिश बनाई है। ओंकार ब्रह्मंड की ध्वनि है और इको यही ध्वनि है, वो सत स्वरूप है। उसे तो सारा ज्ञान आउंदा है, गुरु है, और उसका सुभाव है करुणा दया प्रसाद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सरवण करो। हे प्रभु मैं किस कोल मंगा, किस दे अगों हाथ फैलावां। सारी ते कृत है, तेरी बनाई हुई कृत है। कृत कोल मैं क्यों मंगा, ते सारी कृत। कलगीधर पातशाह कहते हैं केवल काल ही करता, बिन करतार न कीर्तम मानो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बिन करतार न कीर्तम मानो। कृत नूं कृत करके जानो, करता करके नहीं। करतार नूं करता जानो, जिन्हें करता बनाया है उस नाल जुड़ो।